if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. And God would get confused that what have I created? Love you, Modi! Love you. Now they've asked me to answer your questions. That also would not happen in a BJP meeting. Now, what's your thought on making India as a true United States of India? Our strength comes from our diversity. That is an idea that I'm sure you and the Congress party are protecting. We'll do. We've got 5 questions, don't worry. What is the plan of the Indian National Congress to uproot the economic and the social inequality? We are committed as the Congress party to make India a fair place. What hope are you giving to Indian Muslims, which is going to change the whole thing back to the point where we were and get back to the normal stream to develop India? The best way for me to explain that is the line, Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. Thank you so much for your win in Karnataka. You've made a lot of people very, very happy. We've literally cried tears of joy. What would you say to us? As a young person, your country needs you. Do go back and help out. Last question, I like the question, which is, what do I suggest that you do? You are all ambassadors of a particular vision of our country. You believe in humility, you believe in respect, you believe in being affectionate to each other. You should support the ideas that will defeat the BJP. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मोदी जी अगर खुदा के पास भी बैठे हों तो उसको भी ये बता देंगे कि ये दुनिया कैसे चलती है, और भगवान ये सोचेगा कि आखिर मैंने क्या बना दिया, यानी ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया उसी व्यक्ति के बारे में। राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा करारा हमला नरेंद्र मोदी पर, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत है, उनके इर्द गिर्द मीडिया की जो पब्लिसिटी है, और जिस तरह से सरकार का पूरा प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी को लेकर, अब तक का मैं कहूँगी सबसे करारा प्रहार है, जिसमें राहुल गांधी ने इस तरह की मजाकिया बातें कहते हुए, जहाँ पर वो बैठे हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स के 10 दिन के दौरे पर वो गए हुए हैं, कैलिफोर्निया में उन्होंने जो NRIs हैं उनके सामने, प्रवासी जो भारतीय हैं उनके सामने कैलिफोर्निया में ये बातचीत करते हुए तमाम तरह की बातें कहीं, वो आगे बढ़े और कहने लगे कि ऐसे लोग हैं भारत में जो राज कर रहे हैं। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसे लोगों का समूह है जो राज कर रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को ये समझा दे कि विज्ञान क्या है, इतिहासकारों को ये पढ़ा दें कि इतिहास क्या है, वो फौजियों को ये बता दें कि किस तरीके से डिफेंस होता है। इस तरह से कह के उन्होंने पूरे तरीके से वहाँ जो लोग थे उनको मैं कहूँगी एक तरह से आत्ममुग्ध कर दिया। हर उनके एक वाक्य पर तालियां बजाई जा रही थीं, और जिस तरह से वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उसके बाद एक उनका छोटा ही ये उनका भाषण रहा, उसके बाद सवाल जवाब का भी सिलसिला शुरू हुआ। आइए सबसे पहले उनके भाषण का ये हिस्सा देखते हैं। They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो लोग जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, दरअसल वो कुछ नहीं जानते हैं। मीडियोक्रिटी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग, उनको कभी कुछ मालूम नहीं हो सकता क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये 10 दिनों के दौरे पर हैं, इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के बाद अब वो फिर वाशिंगटन भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनका एक भाषण होगा। इस सब का तो इंतज़ार होगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच उनके दूसरे बयानों को लेकर एक तरह का विवाद
विवाद पहले ही शुरू हो गया है। राहुल गांधी का ये बयान, इसके अलावा राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि देखिए मैं सामने कम से कम शष्टांग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ तो नहीं हूँ आपके सामने, कम से कम इस बात के लिए क्या आप खुश नहीं हैं? नरेंद्र मोदी के जो नई संसद के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने सेनेगल के सामने जो शष्टांग किया था, जो दंडवत प्रणाम किया था, उसको लेकर राहुल गांधी ने जब ये बात कही कि मुझे ये सब तो नहीं करना पड़ रहा है, आप खुश नहीं है क्या इस बात से? इसको लेकर बीजेपी ने सीधा वार कर दिया है और उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है राहुल गांधी ने। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसलिए वो इस तरह से शष्टांग प्रणाम का, दंडवत प्रणाम का वो मजाक उड़ा सकते हैं। We can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? Thank you. राहुल गांधी ने आगे बढ़ के फिर ये कहा कि अब देखिए मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, और अगर आप बीजेपी की रैली में बैठे होते, बीजेपी के कार्यक्रम में बैठे होते तो कोई सवाल जवाब वहाँ नहीं होते, वहाँ सवाल जवाब की संस्कृति नहीं है। इससे पहले कि मैं राहुल गांधी की दूसरे भाषणों के हिस्से पे जाऊँ, इससे मुझे याद आया जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सवाल जवाब का कोई सिलसिला नहीं है, आप ये देखिए कि केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी विदेश मामलों को देखती हैं, वो उनसे जब पूछा गया पहलवानों के मामले में कि आप बताइए इस पे आप क्या कहना चाहती हैं, रिपोर्टर उनके पीछे भाग रही है और मीनाक्षी लेखी कह रही हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी दौड़ में हिस्सा ले रही हैं, वो किसी रेस में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा कम होता है कि इस तरीके की तस्वीरें आपको बाकायदा, मैं कहूँगी इसको कहा जाएगा कि मीनाक्षी लेखी रनिंग अवे फ्रॉम क्वेश्चंस। मीनाक्षी लेखी नरेंद्र मोदी की मंत्री सवालों से भागती हुई, ये अपने आप में हास्यास्पद लग सकता है जिस तरह से मीनाक्षी लेखी भाग रही हैं। और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर मीनाक्षी लेखी क्या रही थी, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण किसी काम के सिलसिले में वहां पर गई थी कि उन्हें भागना जरूरी था, हो सकता है उनके पास वक्त ना हो पत्रकार के सवाल का जवाब देने का। तो मैंने फिर देखा कि इससे पहले जहां ये भाग रही थी, मीनाक्षी लेखी ने एक टॉयलेट और वाटर कूलर का दिल्ली के कनॉट प्लेस में उसका उद्घाटन कर रही थी वो। तो इस उद्घाटन के सिलसिले में वो इतनी मसरूफ थी कि पत्रकार, और खासकर एक ऐसे मुद्दे पर जहां के देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के महाअध्यक्ष के हाथों यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। दिल्ली के ये पहलवान जो हैं गंगा में अपने मेडल्स बहाने चले गए थे और अब 5 दिन की मोहलत सरकार को दी हुई है। इस सब आप ये देखिए कितना बड़ा मुद्दा है जिसपे मीनाक्षी लेखी ने इससे पूरे किनारा करते हुए कहा कि कार्रवाई चल रही है। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? वो एक विवादित बयान इस मुद्दे पर दे चुकी हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। तो उस बयान की पृष्ठभूमि में मीनाक्षी लेखी की ये दौड़ आप देखिए, ये दौड़ वो कहाँ जाना चाहती थी, कहाँ पहुँचना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, ये हमने देखा यहाँ पर कि टॉयलेट और वाटर कूलर का उद्घाटन कर रही थी। तो क्यों नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, नरेंद्र मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, 9 साल हो गए हैं। हमने देखा कि उनके तमाम मंत्री कोई भी गंभीर सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। और अब इस तरीके से अगर किसी पत्रकार के हाथ कोई मंत्री आ भी जाए तो वो दौड़ लगा लेता है। इसलिए राहुल गांधी ने यह कहा कि देखिए अब मुझसे कहा जा रहा है कि सवाल जवाब होंगे यहाँ पर। अगर ये बीजेपी का कार्यक्रम होता तो ना यहाँ कोई सवाल होता, ना यहाँ कोई जवाब होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही, खासकर जो पूरी जो नफरत के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर गौर करें कि जब उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप विश्वास रखते हैं गुस्से में, आप विश्वास रखते हैं नफरत में, अहंकार में, तो आप एक बीजेपी की मीटिंग में बैठे होते
और यहाँ नहीं मौजूद होते और मैं मन की बात कर रहा होता। एक काफ़ी मजाक़ी अंदाज में राहुल गांधी ने एक डार्क ह्यूमर, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस डार्क ह्यूमर के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही मोहब्बत की दुकान था, और इस कार्यक्रम में अगर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, आप प्रेम में विश्वास रखते हैं, आप भाईचारे में विश्वास रखते हैं। If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. So, अगली बात जब राहुल गांधी से पूछी गई, ख़ासकर वहाँ बे एरिया, वो जो पूरा इलाका है उसमें बे एरिया के मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, और मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सेक्युलर पॉलिटिक्स को बहुत साल से मैं देख रही हूँ, ख़ासकर जो मोदी राज की जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, अगर उसे देखें तो दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी जो सीधे तौर पर, खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है, दूसरी तरफ हम तथाकथित जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टीज़ हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक तरह का इनविजिबल मुस्लिम वो चाहते हैं, यानी मुसलमान उनको वोट तो दें लेकिन मुसलमान उनकी रैली में नज़र ना आए, मुसलमान उन्हें वोट तो दें, वो तो बहुत सख्त सूरत है, बिना मुसलमानों के वोट के जीत नहीं सकते, लेकिन मुसलमानों को वो टिकट नहीं देंगे। मुसलमान का वोट तो चाहिए, उसका समर्थन भी चाहिए, सब कुछ उसका चाहिए, एक सामाजिक पूरा बेस, लेकिन मुसलमान दिखना नहीं चाहिए, और दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये दोहरापन हमने देखा पिछले कई सालों में, खासकर नरेंद्र मोदी काल में, कि सेक्युलर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के भी जो अलग अलग नेता हैं उनमें अलग अलग राय है इसको लेकर कि कितना हम ये नाम ले सकते हैं, एम फॉर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल यहाँ राहुल गांधी ने किया। जब उनसे यहाँ बे एरिया के मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने पूछा कि जिस तरह से मुसलमानों पे हमला हो रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ नफरत और हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो राहुल गांधी ने ये कहा कि हाँ, ये मुसलमान इसको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ये हमला तमाम गरीबों पर हो रहा है, लेकिन मुसलमान इसको ज़रूर ज़्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सीधे उनकी तरफ ये निशाना है। इस पूरे वाक्य का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्य धारा का पॉलिटिशियन, जो कि नरेंद्र मोदी का चैलेंजर होगा अगले साल प्रधानमंत्री पद के लिए, वो व्यक्ति ये कह रहा है, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि हाँ, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, सीधे तौर पर मुसलमान निशाना है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर ही हमला नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि तमाम तरह की जो समुदाय हैं उन पे हमला हो रहा है। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सिखों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, ये सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप नफ़रत को नफ़रत से नहीं काट सकते, आप नफ़रत को सिर्फ प्रेम और स्नेह से काट सकते हैं। As you know that, Muslims have the security threat today. It was never before. The way we see today, like whenever we call and talk to anybody, it's like, kya ho raha hai yahan pe? What's going on? There are so many different laws which are getting implemented, which were not even implemented earlier. If it is just of the security, it's okay. But then if it goes on and on, like lynching, aap le lijiye, Musalman bachon ko jo hai, they are putting in the jails for the crimes which they have not committed. What strategy will you adopt, or what hope are you giving to Indian Muslims, which is going to change the whole thing back to the point where we were and get back to the normal stream to develop India? The best way for me to explain that is the line, Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have,
in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. और राहुल गांधी की रैली में काफ़ी गड़बड़ी भी हो गई और इसको लेकर तमाम तरह का विवाद सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति ये कहने की कोशिश कर रहा है 1984 के दंगों को लेकर, आप कुछ कुछ सुन पा रहे हैं उसकी बात। वो कह रहा है कि इंदिरा गांधी 1984। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो। राहुल गांधी की जो ये पूरी सभा थी उसमें वो दाखिल हो गया और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसको हैंडल किया, एक तरफ आप ये देखिए और दूसरी तरफ आप ये देखिए नरेंद्र मोदी की रैली। यहाँ भी एनआरआईज को संबोधित कर रहे थे, एक तरफ एनआरआई को नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अमेरिका में एनआरआई को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों रैलियों में आप फर्क देखिए, दोनों रैलियों में भारत के नेता हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। एक तरफ देखिए कि पूरे तरीके से कोरियोग्राफ्ड, पूरी तरीके से क्यूरेटेड ये रैली नजर आ रही है, जिसके एक एक क्षण को पहले से पूरे तरीके से इनेक्ट किया गया, उसको रिहर्सल किया गया और एक रॉक स्टार के तौर पर यहाँ प्रधानमंत्री को दिखाया गया। दूसरी तरफ देखिए आपकी साधारण, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की तरह, किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके सामने लोग बैठे हुए हैं। पहले उनका भाषण होता है, सवाल जवाब होते हैं, कोई आ जाता है, वो घुस जाता है, वो सवाल पूछने की कोशिश करता है, कोई पुलिस उसे पकड़ के नहीं ले जाती, कोई उसके साथ मारपीट नहीं होती, सब कुछ शांति से होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोगों को सुनना चाहते हैं और जो लोग हमसे सहमत नहीं, उनको हम और भी ज़्यादा सुनना चाहते हैं। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स गई हुई थी, अमेरिका में ही, वहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से आम लोगों से मैं बातचीत कर रही थी जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। उसी तरीके से एक हॉल में बैठे हुए थे लोग, यानी कि एक आम पत्रकार और इतने बड़े नेता के पूरा जो ताम झाम है उसमें कोई फ़र्क नहीं था, कोई रॉक स्टार उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ एक बहुत ग्रैंड शो से कम नहीं होती है। तो राहुल गांधी की ये भी आप ये देखिए जिस कलात्मक तरीके से उन्होंने वहाँ हैंडल किया। लेकिन भारत में अगर देखें इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। हमने देखा था पिछले दौर में, कुछ ही महीने पहले की बात है कि यूनाइटेड किंगडम में वहाँ मौजूद थे, लंदन में राहुल गांधी, इसको लेकर विवाद हुआ था कि जो विदेशी सरजमीन है उस पर भारत का अपमान उन्होंने किया है, भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। उसके कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें इस तरफ इंगित कर रही हैं कि किस तरीके से अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि राहुल गांधी ने इस भाषण में जो ख़ास बात कही, और वो शायद मुझे लगता है पूरा सार था, जिस चीज़ से उन्होंने शुरुआत की वही इस पूरे भाषण का सार था। उन्होंने कहा कि सारे जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। बीजेपी आरएसएस कंट्रोल ऑल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी तमाम तरह के राजनीतिक जो हथियार हैं, औजार हैं, जो राजनीतिक मशीनें हैं, उन सब पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है। यानी जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अदालतें हों, या मीडिया हो, या पैसे का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इस सब पर कब्जा है बीजेपी आरएसएस का। और ये वजह रही कि उन्होंने क्यों भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने का फैसला किया। अब ये जो कंट्रोल है 2024 के चुनाव में, राहुल गांधी के भाषण किस तरह से इस कंट्रोल को तो जाहिर है कम नहीं कर सकते, लेकिन उनके ये भाषण आम जनता पर कितना अपील करेंगे ये देखने की बात होगी। और 2024 के चुनाव में जिस तरह से पूरी भूमिका बन रही है, ये हमें उसी ओर ले जा रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।